Hello everyone, how are you? So, let us start our today's class with one of the most interesting topic of physics. I am talking about motion in a straight line and some topics which are very much important to understand motion in a straight line, mechanics, like scalars and vectors, distance, displacement, speed and types of speed, velocity, types of velocity, uniform, non-uniform motion, some higher order thinking, and lastly we will discuss acceleration and types of acceleration. Correct? So these already you got these topics in your class 9 maybe, but these topics again here for class 11th, and also from this speed, types of speed, velocity and types of velocity, so many questions asked in your competitive exam like Z and NEET. So go through this topic in details, go through today's session thoroughly, and if you face any difficulties at any point, though definitely inform me. Okay, so chalo, let us start our today's class. Vectors, scalars and vectors. What is the time right now? Sir, it is 8 a.m. In which direction? In which direction? Time is 8 a.m. In which direction? Only time is 8 a.m. Right? How much force is required? At 2 Newton. In which direction? That is, some quantities are there for which direction is so much important, and for some quantities direction is not, only magnitude is important. Try to understand what I am saying. See, some quantities are there like you know, suppose density of any object, mass of any object, temperature. Yes, let us take the example of temperature. This is a room, right? And at this point, what is the temperature? 24 degrees Celsius. What is the temperature at the point A? 24 degrees Celsius. Is there any question like that? In which direction it is? No. 24 degrees Celsius, only magnitude is sufficient to represent the temperature of the point A. Not required to specify its direction. Only the magnitude. Yes, it is 25 degrees Celsius. What is today's temperature? 38 degrees Celsius. What is today's temperature? 40 degrees Celsius. What is today's temperature? 0 degree, minus 2 degree, 5 degree, whatever may be. But direction is not required. Means magnitude is sufficient. Not required to express any direction. And such quantities are known as scalar quantities, for which only magnitude is sufficient. To express that quantity, only magnitude is required, not required to specify the direction there. Okay, then such quantities are known as scalar quantities or scalars. I repeat it again. Scalar quantities are those quantities which have only magnitude. Magnitude is important, direction not required to specify the direction. Already I told you so many examples. I am giving you temperature, only magnitude. What is your body temperature? 30 degrees Celsius, 40 degrees Celsius, 100 degrees, no, 100 degrees Celsius na. 100 degree Fahrenheit maybe, but degree na. Okay. So temperature is a scalar quantity. Okay. Speed is a
scalar quantity. Mass is a scalar quantity. Density is a scalar quantity. So many examples are there of scalars where only magnitude is important. Magnitude is important. Direction is not required. Right? Understand na? Sunamay na? Huh? Okay. So magnitude is important. Direction not required. So such quantities are known as scalar quantities or scalars. Now we see, let us try to understand what is a vector quantity. What is a vector quantity? See, I am giving a simple example. You are sitting on a chair in your study table, in front of your study table, in your study room, in a chair, you are studying these scalars and vectors. Suddenly any family member shouting with snake, 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 snake. Then two questions are there from your mind. Two questions. Where, which direction it is coming? And number two, what is the size? What is the type? Whether it is poisonous? What is the length of the snake? How much large? That is whether the snake is coming towards you. That is what is the direction of the snake. And number two, what is the size of the snake? Whether it is dangerous. Two cases are there. Maybe snake is dangerous, but it is going away from your house. Then don't worry about the snake. Maybe snake is coming towards your table, but it is very small in size, it is not poisonous. Then also don't worry about it. The means two cases are there, magnitude and direction. See, so many cases are there. When, so after college or school जब खत्म हो गया स्कूल का, तो स्कूल से घर जाना है, तो स्कूल से तुम्हारा स्कूल या कॉलेज जो भी है, स्कूल से या कॉलेज से जो तुम्हारा घर है ये 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर कॉलेज, 20 किलोमीटर अवे योर house. Now our phone, you told your mommy that mommy I am coming with 20 kilometer per hour. Whether you will reach after 1 hour at your home, may or may not. How? Because if you forgot the direction of your home, after 1 hour may reach far away from the home, may or may not reach. If you are moving with 20 kilometer per hour, no issue, but in a specific direction towards your home you should move, then only after 1 hour reach your home. That is both magnitude as well as direction is important. I am giving another example, try to understand. See, this object block, right? And Chinturam, ये Chinturam है. So Chinturam is exerting force on it, and you know to change the position of this block 10 Newton force is required. So Chinturam exerting force, but maximum he is able to exert 9 Newton force. His magnitude is not sufficient.
so the block is not moving. Suppose I want to bring this block at this point, I want to bring the block at this point. He is exerting 9 Newton force. 10 Newton force is required to change the location of this block, and he is exerting 9 Newton force, means his magnitude is not sufficient to change the location of the block. Now कोई फिजिक्स टीचर उसका पढ़ाया था कि हाँ वो उसका एक वेट होता है तो डाउनवर्ड फोर्स होता है, तो वो समझ के क्या किया, वो जाके इसके ऊपर बैठ गया चलो ब्लॉक के ऊपर बैठ गया, तो अभी तो बहुत ज्यादा फोर्स हो रहा है. He is exerting more than 10 Newton force. You know, he is exerting 50 Newton force. Yes, he is exerting 50 Newton force. 50 Newton force. Now, whether the block will move at the point A? No. Here, magnitude is 50 Newton, but direction is in downward direction, not towards A. That is, in first case, Chinturam unable to displace this chair, this block, because of or lack of magnitude. And in second case, he is exerting 50 Newton force. Magnitude is sufficient, but direction is not sufficient. That is to check. I repeat it again. First, in first case, his magnitude is not sufficient, but direction is sufficient. Direction is correct, magnitude is not correct. And in second case, magnitude is correct, more than it, but direction is not correct. That is to change the location of this block, both magnitude as well as and direction is sufficient, sufficient magnitude, sufficient direction required to change the position of the block. That is, both magnitude as well as direction is important. And such quantities where magnitude, direction and another thing is that should obey vector algebra. Vector algebra, ऐसा बहुत महान व्यक्ति है जो कि वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करते, और अगर वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं किया तो ये वेक्टर नहीं होगा. यू नो, इंडिया में रहने से इंडियन है हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो करना हमारा जिम्मेदारी है. तो ये है जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, मतलब वेक्टर अलजेब्रा, वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना पड़ेगा अगर वेक्टर क्वांटिटीज बनना है, वेक्टर्स बनना है. So, vectors have magnitude, direction and also obeys vector rule, vector algebra, vector addition rule, vector subtraction rule. जो महान व्यक्ति का नाम लिया था वो ऐसे एक महान व्यक्ति देखो कौन है. You see, current. अच्छा, current. करंट आया 5 न्यूटन, सॉरी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट. अभी 5 एम्पियर करंट से इधर गया 3 एम्पियर, इधर कितना जाएगा 2 एम्पियर, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ अभी सेकंड ईयर में है वो. तो 5 एम्पियर आया, 3 एम्पियर इधर जाएगा, 2 एम्पियर इधर आएगा. तुम इनमें जितना भी एंगल चेंज करो, 30 डिग्री बनाओ तो भी वही वैल्यू होगा, 50 डिग्री बना दो तो भी वही होगा, 90 डिग्री बना दो तो भी वो करंट का जो वैल्यू है इधर 3 इधर 2 टोटल 5 वही होगा. मतलब ये दोनों का डायरेक्शन का ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे. व्हेयरएज वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स, जैसे कि ये वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में, ये वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में, दोनों का बीच में क्या एंगल है इसका ऊपर डिपेंड करते एडिशन. जैसे कि तुमको बता दो कि 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन बोलोगे कितना, बोलो सर ये कोई बात हुई 4 न्यूटन, बोलूंगा नहीं. 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन कितना होगा, इट विल डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन. 2 न्यूटन, ये 2 न्यूटन ईस्ट और ये 2 न्यूटन वेस्ट नहीं होगा, तुम्हारा 4 न्यूटन हो जाएगा क्या 0 न्यूटन. 2 न्यूटन ईस्ट 2 न्यूटन वेस्ट 0 आ जाएंगे. बोथ शुड बी इन द
same direction, right? Then only it should be 4 Newton. Now if the angle between 2 Newton or 2 Newton 3 Newton by making 90 degree 60 degree 30 degree 0 degree depending on angle different value will come. That is we'll discuss vector addition. मतलब ये क्लास 11th में मुझे फिर से एडिशन सीखना पड़ेगा, फिर से सब्ट्रैक्शन सीखना पड़ेगा, फिर से मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ेगा. हाँ, यही तो बात है. यू हैव टू लर्न वेक्टर अलजेब्रा, यू हैव टू लर्न वेक्टर एडिशन, यू हैव टू गो थ्रू वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यू हैव टू गो थ्रू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. So we'll discuss all these things one by one, but two things are there. फिर से बोलो क्या है कि स्केलर only magnitude, vector magnitude direction and also obeys vector addition rule. magnitude होने से मैं क्या बोलूँ, स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि क्या है, स्पीड है जैसा मैं बोला, टाइम है, टेम्परेचर है, टंग और वेक्टर्स है. मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर के लिए, क्या होगा मैग्नीट्यूड, क्या होगा डायरेक्शन, क्या फॉलो करना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा. जैसे कि फोर्स, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि टॉर्क, टन. तो ये की क्या हुई, ये हुई तुम्हारा वेक्टर्स और ये क्या हुई, स्केलर्स. समझ में आ गया बच्चों, सभी का समझ में आया, ठुको, यस. चलो समझ में आया ना, चलो आ जाओ. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अभी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है. डिस्टेंस, यू सी, ये जो चिंटू है, ये कौन है, चिंटू घर से नहीं, ये पार्क से घर में गया और घर से स्कूल में गया. ये स्कूल है. अच्छा ये स्कूल दे दो, नहीं ये स्कूल दो. पार्क से घर, घर से स्कूल, ठीक है. तो ये गया. तो ये जो डिस्टेंस कवर किया, टोटल पाथ लेंथ 4 मीटर प्लस 3 मीटर, मतलब ये 7 मीटर, ये क्या हुई उसका डिस्टेंस. और जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट अगर लिया जाए कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तब ये आएगा डिस्प्लेसमेंट. बात को और अच्छे तरह से समझो, मैं भी समझाऊंगा, कोई इशू नहीं, जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे समझते हैं, सब समझ जाएंगे, कोई भी इशू नहीं है. जैसे कि ये यहाँ से ये आ गया, ए से बी में गया, आसाम से कहाँ जाना है, ये हाँ कोई भुवनेश्वर है, तो ये अंबिकापट्टी से कहाँ है, ये बदरपुर. तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया सी पॉइंट में. तो ये जो गया ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो पाथ लेंथ हुई L इजिकल टू AB प्लस BC, ये क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ. इसको क्या बोलो, इसको बोलो डिस्टेंस. अभी यहाँ से तो इनिशियल पॉइंट यही था ना और फाइनल तो यही था, तो फाइनल और इनिशियल का बीच में जो डिफरेंस है वही हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, L इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, AC इज द डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हुई, डिस्टेंस. डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट. जैसे कि बात को और अच्छी तरह से समझो. व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ और टोटल पाथ लेंथ covered by the object
इन ए गिवन टाइम में कितना पाथ लेंथ कवर कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या हुए डिस्टेंस। सो इसके बाद स्पीड वेलोसिटी आएगा धीरे धीरे, उसमें टाइम इंट्रोड्यूस कर देगा, अभी टाइम नहीं चाहिए। टोटल चेंज इन तुम्हारा पाथ लेंथ, इसको डिस्टेंस कर दो, और इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल जो आ रहा है ये क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं, कोई भी डायरेक्शन में होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, रुको, डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। दैट इज ऐसा समझ जाओ, टन्ना 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 यहाँ से तुरु यहाँ पर आया। तो जितना भी बतलन कवर किया सारे क्या हुए डिस्टेंस, राइट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है नोट कर लिया। तो डिस्टेंस में भी, और इसका यूनिट तो क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा मीटर, डिस्टेंस है बॉस है, और डायमेंशन क्या होगा एल, राइट, हो गया। तो ये हुई तुम्हारा डिस्टेंस। अभी क्या है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट नंबर वन ये क्या है वेक्टर है, मतलब इसमें क्या रहेगा मैग्नीट्यूड है, राइट, डायरेक्शन है, एंड क्या रहेगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, एंड अभी क्या करेगा वेक्टर अलजेब्रा। इसके बाद क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। अभी ऐसा यूनिट क्या आएगा, सेम ऐसा यूनिट आएगा मीटर, डायमेंशन क्या आएगा एल, m0 t0 एल सिर्फ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है कि जैसे कि तुम यहां से यहाँ जा रहे हो, तो तुम टन्ना 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 करके यहाँ पर गया, फाइनली तो ए से बी तक रे भाई यही गया ना, यही डिस्प्ले यही तो कवर किया। तुम इधर जाओ तेरे मेरे तेरे, तो ये गया, तो ये तो हुई क्या डिस्टेंस, और ये जो हुई ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। का मतलब distance is the total path length from initial point to the final point, and the shortest distance between this initial and final point is known as displacement. So this is the final definition. I repeat it again, समझ जाओ। What is distance? Distance is the total path length from the initial point to the final point, and displacement is the shortest distance between the final and initial point. So it should have a direction. It is a vector quantity. Distance is a scalar quantity. समझ गया ना। देखो फिजिक्स का अच्छे तरह से समझना चाहिए। बात है कि कोई लोग, बहुत सारे लोग फिजिक्स को कहते हैं टफ। ये फिजिक्स टफ हुआ, मैं बोलूंगा दो तीन रीजन है इसके पीछे। कुछ चीजें ऐसा होता है कि इजी है उसको टफ बनाया जाता है, हाँ बहुत टफ वे से समझाते भी है। कोई कोई बुक्स भी है ऐसा जहां पर बहुत टफ वे से लिख के दिया, इतना टफ लिखा स्टूडेंट भी डर के मर गया।
तो फिजिक्स को इजी लैंग्वेज में समझना चाहिए। मैं मेरा जितना भी बुक्स है, मेरा 2 बुक्स में, दोनों बुक्स में मैं इजी लैंग्वेज में समझाया फिजिक्स को, और अभी भी ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ एवरी टाइम टू एक्सप्लेन फिजिक्स इन ए वेरी सिंपल वे, बिकॉज फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ your nature, our surroundings, and so we have to take it in our own way. Take your own example, take your surroundings example to understand this physics, then it will be very much easy to you. So every time whenever you are explaining, whenever you are studying physics, so you have to take example of your surrounding, then you will understand everything, will understand easily. Understand na? Chalo. Speed and types of speed. Okay, speed and types of speed. चलो, स्पीड क्या है? स्पीड तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट in a given time. You see, distance traveled by the object, distance traveled by time taken, distance traveled by the time taken. So what is speed? या speed भी ऐसा भी कह सकते, speed is defined as the rate of change of position of the object with time. टाइम के साथ पोजीशन का कितना चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज स्पीड. आई रिपीट इट अगेन, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, राइट, वट एवर द डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन टाइम. इन हाउ मच टाइम? जैसे कि समझ जाओ, ऐसे जैसे कि तुम ये घर से, ये तुम्हारा हाउस है, हाउस से तुम स्कूल में गया, स्कूल से बैंक में गया, बैंक लूटने नहीं सो बैंक से तुम कहाँ गया? प्लेग्राउंड में, और प्लेग्राउंड से कहाँ गया? कहाँ जाए? प्लेग्राउंड से कहाँ जाए? कहीं रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट से फिर तुम कहाँ आया? अपना घर में. सो राइट, घर से स्कूल, स्कूल से ये क्या था? बैंक, बैंक से क्या है? प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड से कहाँ? रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट से क्या? होम. तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये क्या हुई? ये जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना टाइम लगा? जैसे सुबह 6 AM को बाहर हुआ, और फिर कर स्कूल तो बंद था इसीलिए, तो आ गया 10 AM में. तो ये जो टाइम लगा ना, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये जो टाइम लगा 6 AM से 10 AM तक, तो ये जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइड बाय जितना भी टाइम है, ये क्या हुई? दिस टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, हो गया क्या तुम्हारा? स्पीड. सो चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अभी तुम्हारा यहां से टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, चेंज नहीं, चेंज बाद में बोल दूंगा. अभी क्या है कि टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, राइट, देन दिस इज योर डिस्टेंस. करेक्ट, करेक्ट. नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? नाउ यहां पर भी कुछ कुछ बातें बोल सकता हूं स्पीड के लिए. स्पीड के लिए नंबर 1 स्पीड क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी, समझ गया. नंबर 2 क्या होगा? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर्स. और क्या होगा इसका? ये सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता. और थर्ड वन क्या है? इसका मीटर पर सेकंड ही आएगा, क्योंकि लेंथ के लिए तो हम मीटर लिख दूंगा, टाइम के लिए सेकंड लिख देंगे, मीटर पर सेकंड. और डायमेंशन क्या आएगा? L1 T-1. करेक्ट. सो ये जो हुई total distance covered in a given time, distance covered by the object in a given time, that is your speed. Correct? या ऐसे भी बोल सकते हैं change of position of the object in a given time with respect to time, that is your speed. कितना सारे डेफिनेशन है, कितना सारा, लेकिन मुद्दा तो एक ही है, वही समझना है कि कितना पाथ लेंथ कवर कर रहे हो और कितना टाइम से. समझ में आ गया?
ओके चलो, इसका भी बहुत सारा टाइप। यूनिफॉर्म स्पीड है, नंबर 2 क्या है, वेरिएबल स्पीड है, इसके बाद क्या है, एवरेज स्पीड है, और लास्टली क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ये भी समझना पड़ेगा। जैसे कि समझ जाओ, ये जो दौड़ रहे, सपोज ये फर्स्ट 0 से शुरू किया, 5, 10, 15, 20, और ये जो पोजीशन 5 चेंज हो रहा है ना, इट विल टेक 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। दैट इज, ये मीटर में है, सपोज ये मान लो मीटर में है, ये मीटर में है। So 5 meter in 1 second, 5 meter in 1 second, 5 meter in 1 second, 5 meter in 1 second. That is every equal amount, equal distance in equal interval of time. And such, ये जो महान है, सुना पापा, तो हाँ, तो इसका जो स्पीड है, इसका मैं क्या कह सकता हूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस covered by this object in equal interval of time. 5 meter in 1 second, 5 meter in 1 second, 5 meter in 1 second, 5 meter in 1 second. Equal distance covered by the object in equal interval of time, and so it is uniform speed. ना मान लो ये बेचारा ऐसे ऐसे दौड़ते, देखते, ऐसा करते, तो ये क्या कर रहे, ये 1 सेकेंड में, ये 2 सेकेंड में, ये 5 सेकेंड में, और ये 3 सेकेंड में। अरे हैं, ये क्या किया, फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 मीटर 1 सेकेंड में, सेकेंड 5 मीटर 2 सेकेंड में, फिर 5 मीटर 5 सेकेंड में, फिर 3 मीटर 5 मीटर 3 सेकेंड में। मतलब equal distance in unequal interval of time, और unequal distance in equal interval of time, unequal distance in equal interval of time भी हो सकता है। जैसे कि तुम मान लो ये है, तो यहां से 5 मीटर in 1 second, then 20 मीटर, अरे बाप रे बाप, in same 1 second। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या हुई कि ये वेरिएबल स्पीड आ गया। वेरिएबल स्पीड मींस इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि पागल मैडमैन क्या करते हैं, दौड़ते तो धीरे, तो देखते तो करते तो धीरे, तो ऐसा मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या फर्क। तो ये क्या हुई, वेरिएबल स्पीड। और जब भी आया वेरिएबल स्पीड तो आ जाएगा क्या, एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज total distance covered by the object divided by total time taken। इसका और भी अच्छे तरह से समझते हैं, समझो जो बोल रहा हूं। जैसे कि मान लो यहां से ये ए पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, आगरा जैसा, आगरा से ए से गया कहां पर, दिल्ली, डी, ए से डी पॉइंट में गया, न्यू दिल्ली पॉइंट, दिल्ली। सो एक पॉइंट है डी, ए से डी। अभी ये जाने का टाइम में, वेल इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। द व्हीकल, जिस व्हीकल से जा रहे, ये व्हीकल क्या कर रहा है कि ये जैसे भी जा रहे, ये जो भी डायरेक्शन में जा रहे, ये क्या कर रहा है, उसका स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट जो ये फर्स्ट 1 किलोमीटर गया, तो फर्स्ट 1 किलोमीटर गया, सपोज 1 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, राइट। सेकेंड जो 1 किलोमीटर है, सेकेंड 1 किलोमीटर 5 सेकेंड, अच्छा दौड़ पकड़ लो, कोई इशू नहीं। 1 किलोमीटर इन 5 मिनट,
और फिर 1 किलोमीटर जो गया ये क्या है 5 आवर में। अरे देखो है इक्वल डिस्टेंस 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर बट 5 सेकेंड, कभी कभी 5 मिनट, कभी 5 आवर, मतलब उसका इक्वल डिस्टेंस तो था लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ गया। तो इसलिए अनइक्वल 5 सेकेंड 5 मिनट 5 आवर ये सब अनइक्वल है, राइट ना। तो ये क्या हुई वेरिएबल हुआ, और वेरिएबल जब हुआ तब तुमको क्या करना है टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक ले लो, कितना डिस्टेंस है दिल्ली आगरा टू दिल्ली, या टोटल डिस्टेंस सपोज कुछ भी ले लो 200 ले लिया 200 किलोमीटर मान लो ऐसे ही, तो 200 किलोमीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 आवर लग गया तो 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर जो भी है, तो ये टोटल डिस्टेंस जितना भी है डिवाइड बाय टोटल टाइम जितना भी है वो कर दो, आ जाएगा क्या एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। वन थिंग इज दैट जो भी नोट्स है सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन से कलेक्ट कर लेना, यहाँ पर जो समझा रहा हूँ वो समझ जाना, ठीक है। और समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और तो अगर किसी का ज्यादा टुकली मारने का शौक है तो वो क्या करेगा वो डाउनलोड करके नोट्स वो लिख लेगा, राइट। तो ये आया क्या तुम्हारा एवरेज स्पीड। अभी एवरेज स्पीड आया तो इंस्टेंटेनियस क्या होगा? व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? Instantaneous speed means speed of the object at any instant of time। जैसे कि समझ जाओ ऐसा है, यहां से यहां तक ये x1 है ये x2 है, A पॉइंट B पॉइंट, तो डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ डेल x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होगा ना, और टाइम यहां पर t1 टाइम था यहां पर t2 टाइम था, तो डेल t इज इक्वल टू क्या है t2 माइनस t1, करेक्ट। टोटल डिस्टेंस कितना है x2 माइनस x1, टोटल टाइम क्या है डेल t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। कोई लोग कहते हैं कि डेल क्या है, डेल इज द डिफरेंस ऑफ फाइनल टाइम इनिशियल टाइम का बीच में डिफरेंस, डेल क्या है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का बीच में डिफरेंस। तो एवरेज जो स्पीड हुआ, एवरेज स्पीड क्या बोलोगे, एवरेज स्पीड v एवरेज इज इक्वल टू डेल एक्स बाय डेल टी, ये एवरेज स्पीड हुआ। अभी इंस्टेंटेनियस का जब बात आए, इंस्टेंटेनियस तब क्या आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तब तुमको क्या करना है इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या है लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, और इसका साहब बहुत सुंदर करके हम लिखते dx dt। ये क्या है समझना पड़ेगा कि वी इंस्टेंटेनियस जब आएगा मतलब दिस टाइम इंटरवल शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज आई एम टॉकिंग, जैसे जर्नी शुरू हुआ सुबह और इवनिंग में मैं पहुंचा तो डिफरेंट टाइम डिफरेंट मेरा स्पीड था, और मैं पूछा जैसे कि सुबह 7 AM को निकला 7 PM को पहुंचा, और मैं बोला डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीड हुआ, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीड हुआ, और मैं बोला बोलो तो 1 PM में तुम्हारा क्या स्पीड था, तो 1 PM उसी टाइम में उसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो स्पीड होगा उसी का नाम क्या बोलूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। और तुम ऐसा भी बोल सकते कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा और जाने के लिए मुझे 12 आवर्स चाहिए, और ए और बी का बीच में कोई जगह का नाम बोल दो उसी जगह में जैसे सी पॉइंट में, तब तुम्हारा स्पीड क्या था, वो क्या हुई इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिलचर से गुवाहाटी जा रहे हो तो जाने के लिए तुम्हारा डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीड हो ही सकता है। तो जैसे कि मॉर्निंग 7 AM को निकला 7 PM को पूछा, तो 1 PM में तुम्हारा स्पीड क्या था, वो जो इंस्टेंटेनियस टाइम है उसी टाइम में तुम्हारा स्पीड क्या है, ये क्या हुई इंस्टेंटेनियस स्पीड। और सिलचर से गुवाहाटी जा रहे हो तो बीच में जैसे कि शिलोंग का कोई पॉइंट में वहां पर तुम्हारा स्पीड क्या था एट सर्टेन पॉइंट ऑफ शिलोंग, तो ये क्या होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम
or at any certain point of the total path length, total whatever the path length, whatever the distance, right? And at any point whatever the speed is referred as instantaneous speed. करेक्ट अंडरस्टैंड ना? सो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, अभी जा रहा हूं कि वेलोसिटी में। अभी वेलोसिटी जल्दी से क्लास कंप्लीट करना पड़ेगा, टाइम ज्यादा नहीं है, तो मैं ये जल्दी जल्दी बोल देता हूं। स्पीड जैसा वेलोसिटी भी वही है, सिर्फ यहां पर डायरेक्शन लाना पड़ेगा। वेलोसिटी मतलब क्या है? वेलोसिटी सिंपली देखो, बहुत इजी है। वेलोसिटी मतलब ये वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड लिख दो, बट साथ में क्या करना पड़ेगा? साथ में स्पीड विथ, अरे बाबा, स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन से जो स्पीड आएगा उसी को ही तो हम वेलोसिटी बोल दूंगा। वेलोसिटी स्पीड अलोंग विथ डायरेक्शन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि ये, हाँ ये जा रहे, राइट, तो हाँ नो क्या हो गया? हाँ अभी होगा, ये नैनो, तो ये जो जा रहे बेचारा, तो इसका जो एक डायरेक्शन में जा रहे, राइट, एक डायरेक्शन में है, तो वे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में जा रहे, जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहे, तो इट इज मूविंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो वट एवर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, ये क्या होगा? उसका वेलोसिटी, मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, तब बात आएगा क्या? वेलोसिटी का। फिर आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर आएगा वेरिएबल वेलोसिटी, फिर आएगा एवरेज वेलोसिटी, एंड देन लास्टली आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम एज अर्लियर। अंडरस्टैंड ना? सो वेलोसिटी मतलब क्या है? हम यहां पर डायरेक्शन का बात कर रहे, मैग्नीट्यूड होगा, साथ में कौन सा डायरेक्शन में जा रहे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट ना? समझ में आ गया वेलोसिटी? आई थिंक समझ में आया, कोई भी डाउट नहीं है। उसमें भी सेम आएगा तुम्हारा, सिर्फ वेक्टर वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है हमारा। यूनिट, ऐसा यूनिट क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड ही आएगा। डायमेंशन है फॉर्मूला L1 T-1 वही आएगा, और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, uniform and non-uniform speed. Uniform speed means an object is said to be moving with uniform speed if it is covering equal distance in equal interval of time in a specific direction. In a specific direction. Equal distance in equal interval of time, मतलब equal velocity का बात कर रहा हूं मैं, हाँ, equal velocity in equal interval of time, तब क्या बोलेगा इसको? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा ए से बी में जा रहे, ठीक है, और इसका बीच में जितना भी पार्ट कर दो, टंग 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 टंग, इक्वल पार्ट क्या? ये इक्वल पार्ट, ये इक्वल पार्ट, ये इक्वल, सारे इक्वल पार्ट है, हाँ, और सभी इक्वल पार्ट में, राइट, सभी इक्वल पार्ट में जितना भी वेलोसिटी है, जैसे कि सभी में वेलोसिटी v है और टाइम भी t है, राइट, मतलब वेलोसिटी सभी जगह के क्या है? इक्वल इंटरवल में इक्वल ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। जैसे कि बहुत यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बहुत कुछ एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि मूव कर रहे एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट, और उसका स्पीडोमीटर जो है जैसे कि 20 किलोमीटर पर आवर में मूव कर रहे, तो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, एवरी पॉइंट 20 किलोमीटर पर आवर इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो मतलब उसका डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है विथ टाइम, तो इसको क्या कहे? हाँ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेयर वेलोसिटी चेंजिंग विथ टाइम, करेक्ट? अंडरस्टैंड ना? ओके, चलो ये महाशय का देख लेता हूं। ये देखो अभी क्या है, O to A to B, B to C, ये जा रहे 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, मतलब every 4 मीटर in a given time, 2 सेकंड in a specific direction, तू जा गया, मतलब ये क्या हुए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, करेक्ट? समझ में आ गया? चलो
अभी लास्टली तुम्हारे लिए ये है, हाँ, तो ये चिंटू, ये मिंटू, हाँ, और ये रिंटू, ये तीनों करके दे देना मुझे क्वेश्चन विद इन 2 days। तीनों क्वेश्चन का सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट डे दे देना। ओके चलो, आई नीड दिस आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस। ये नेक्स्ट डे समझाऊंगा एक्सीलरेशन क्या है। ओके, विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में एक्सीलरेशन समझाऊंगा, जहां पर देखूंगा कि स्पीड चेंज होने से, वेलोसिटी चेंज होने से, मैग्नीट्यूड चेंज होने से, डायरेक्शन चेंज होने से कैसा एक्सीलरेशन हो रहा है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन आएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर watching, for staying with me. Bye bye everyone, we'll meet with you on the next class.